is Basim and I will be your host today. Today we have Atif and Heather with us today. They are from Arbisoft. Let's start with the introduction. Atif. My name is Atul Fikar and I've been with Arbisoft for more than 5 years now. I work as a software engineer in child safety and their main focus is on data scraping. We have a lot of websites being covered in the clothing industry as well as in beauty and furniture market. So we collect data from the websites about the projects they host and the data is being used by strategic team to make predictions for the prices of the products as well as how the sales trends are going on in the market. And this is mostly used by clients in Europe and American region. You work mostly on data analytics side. No, the team here at Arbisoft is mainly focused on the web scraping part of the product. So we usually handle all the spiders and keeping them up to date and maintaining the data quality. My name is Heather, and it's been like 4 years with Arvisoft. Currently, I'm working as a senior software engineer. And if you talk about like my tech stack, so I mostly work on Python. There's a framework of Python called Django, so I work on that framework. And other than that, definitely there are some other like AWS services, like so I work on that. That's it. How would you guys describe Arbisoft to someone who doesn't know Arbisoft? Ubisoft is basically you can say a software house that deals in both they provide services to the clients and they do have their own products as well. So you cannot say that it's a service based company or a product based company. Like they work on services as well, where they we have clients in US, Germany, and different countries. So we provide services to them as well, and then they have very good products as well, in-house built products. So like they manage these products as well, and they definitely they are planning to sell them out. I see. Recently, there's a product of Arbisoft, I guess, Moonbeam, that they have. Yeah, they sold that. What does that do? Moonbeam was a podcast platform where the main feature on which they sold that project to a client was that they had developed a very good search algorithm. It's based on a small clip of the audio, or you can say the voice recognition software was very good in that application. So that was the main feature the client wanted to obtain from Moonbeam. They used they integrated that into their own project, and Moonbeam was set up as a subsidiary of that product to be used in the market. I see. So does Ubisoft use AI in their products often? Well, the product that I am currently working on, so we don't have an AI team for that project, you can say, but yeah, we do have an in-house AI team, data engineers, and we do have some projects in which like they are using different AI algorithms and other AI tools. But the project on which I am working, so we are not working with any AI right now. Overall, what technologies does the Ubisoft cover? I guess mostly if you ask about which language, then it's hard to tell because Ubisoft is currently working on .NET, Python. On the front end side, if you ask me about, so they are working on React, Angular, any modern tools and technology. You will name it, and Ubisoft is working on these technologies. We have different teams. But if you ask me about like majority of your project, about their tools and technologies, so mostly Python and Django as a backend, you can say, and then React as a front. Do they have a blockchain team? Well, blockchain team,
I guess I am not sure about that, but Neither am I sure about blockchain thing. basically, Arbisoft is not a small company. So there are multiple teams working on multiple, like you can say, tools and technologies. So I'm not sure about if they are working on the blockchain. I just saw that on Instagram, that on LinkedIn, that you have more than 900 employees. Is that correct? I guess 900 is an average. I guess we have more than More 900. than I think the current capacities are above 100. Yeah. That's Because we big have company. currently three offices. One is in Lahore, that is our main office, and in Lahore we have, I guess, two offices. One is like you can say where our data analytics team is basically there, and then we have one office in Islamabad, and one is in Karachi. And there are also like remote working options in Arbisoft. Yeah, after COVID, this has been a trend in the company. Now, depending upon what project you are on and what is the team situation, that defines your work hours as well as your mode of working. Like there are some teams which, like in my team, we are completely on a remote basis, and the work hours are very flexible because of the type of work we have. We are usually very individualistic working, not much to interact with other members in the team. So very flexible upon when to get online and when to go offline. Just that you have to complete your 8 hours of work, and that's it. So depending upon which team you are in, there is a lot of flexibility. You don't need to, like, you don't have like 9 to 5 exact. No, no. That depends upon, again, on the project you are on and the project you are working with. So in my project, it's very flexible. We have some common hours that we have to have 4 hours overlapping with all the team members. Other than that, you can have some relaxed work, like you can, if you start work from 12, you can finish your work at 8, That's something like that. Very flexible. also, what are the incentives for the employees? Like, do they go on like trips, and do they have holidays and other incentives? Yeah, like pretty much all incentives are covered like in Arbisoft. Like we do have a medical policy. Arbisoft basically divided incentives in two categories. One is like short-term benefits, and the one is long-term benefits. Like long-term benefits, I guess they start after like 5 years of experience, something like that. So in long-term benefits, like they have a policy for like vehicle, bikes, and similarly some other like where they provide like RBs of their phantom shares to their like employees. And if you talk about like short-term, so they are like medical policies. Other than that, yeah, we do have like reimbursement for trips and quarterly lunch reimbursement where like 5 or 6 people like from team or team bigger than that can go on like lunch or dinner, and then they can reimburse like quarterly. Yeah. That's The biggest benefit I would say would be the free lunch that the company provides. If you are an office working employee, that's a huge advantage. Don't have to worry about what would be for lunch. So you get the lunch in the office. Yeah, lunch is sponsored by Argus. Do you have a cafeteria, or you order it from somewhere? We have a cafeteria. Company has a kitchen of their own. The meals are prepared by kitchen staff, which are employees of the office, and that's a very good service. And for a very good thing about this is like when I go to cafeteria, I always see my CEO, directors sitting with the employees, and they are having the same lunch that we are like having. So there is no discrimination. No. Yeah. Either if it's a director or CEO, they will sit in the same area and they'll have the same dinner or lunch. You can say. That's cool. Now moving on. Can you tell us about your bachelor program?
ambassador programs. Basically, ambassador program is like you can say a representative that RBSoft picks from each university. आप अपने कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? यार कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम जो है ना बेसिकली वो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके मतलब सेकंड और थर्ड सेमेस्टर ये जो है ना टारगेट स्टूडेंट होते हैं हमारे, उनको हम लोग क्या करते हैं एक आरबी सॉफ्ट का रिप्रेजेंटेटिव उनकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उसको हम मतलब लेके आते हैं और उसके अंदर फिर उनका ये होता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में आरबी सॉफ्ट के साथ मिल के डिफरेंट इवेंट्स करवा रहे होते हैं। जैसे एक इवेंट है मॉक इंटरव्यूज़ का। अब उसके पीछे मेन बेसिकली गोल ये है कि जो इंटरव्यू वगैरह है ना उसमें मतलब हमारी तरफ से कि किस तरह हम जज कर रहे होते हैं एक मतलब फ्रेश ग्रेड को, ठीक है, कौन से मतलब किस तरह के उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, फिर आंसर किस तरह के एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उनको एक प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। तो कैंपस जो एम्बेसडर प्रोग्राम है उसके पीछे मेन यही है कि आरबी सॉफ्ट और जो कैंपस हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो मिल के इन हाउस कोई इवेंट्स वगैरह करा रहे होते हैं, ठीक है, ये वो इसके अंदर डेफिनेटली जो कैंपस एम्बेसडर होता है उसको कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है, जो कि आरबी सॉफ्ट की तरफ से होते हैं। तो ये हमारा एक बेसिकली कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है। इसके अलावा जो आपको मॉक इंटरव्यू होता है और जो इंटर्नशिप या जॉब के लिए इंटरव्यू होता है उसमें क्या फ़र्क होता है या वो सिमिलर ही होते हैं? अच्छा, इसमें मैं अपना जो मतलब मुझे जो फ़र्क लगता है वो फ़र्क ये है कि जो मॉक इंटरव्यू होता है ना वो बड़ा ही मतलब थोड़ा सा बेसिक लेवल का होता है, ठीक है। और जो आप कहते हो कि हायरिंग जो होती है ना फ्रेश ग्रेड की, तो उसके अंदर हमारा बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर इंटरव्यू बहुत एंड पे आता है। पहले हमारा एक एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होता है, वो क्लियर हो तो उसके बाद एक हमारा ऑन साइट टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब अभी तक तो यही होता है कि 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और उसके बेस पे फिर हम एवेलुएट करते हैं। वो भी जो टेस्ट हो रहा होता है वो एक हैकर रैंक टाइप हमारा अपना ही प्रोडक्ट है लिटमस के नाम से, उसके ऊपर वो टेस्ट होता है, उसके ऊपर ही उसकी मार्किंग और सारा कुछ होता है। देन उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन डिटेल्ड उसको टेक्निकल इंटरव्यू नहीं कह सकते, वो एक बहुत ही बेसिक लेवल का इंटरव्यू होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद डेफिनेटली आगे हायरिंग प्रोसेस चलती है। और इंटर्नशिप्स के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो होता है, ये डिफरेंट होता है? इंटर्नशिप्स के लिए जो होता है वो हमारी इंटर्नशिप्स जब ओपन होती हैं तो उसके लिए पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाता है, उसमें भी हमारा क्राइटेरिया है सेमेस्टर्स का, ठीक है, और अगर वो क्राइटेरिया सारा फुलफिल होता है तो उसके बाद फिर डेफिनेटली हमारी जो टीम्स हैं जो इसको देख रही होती हैं उसमें बेस्ड ऑन जो उनके इंटरेस्ट वगैरह हैं उसकी बेस पे उनका एक बड़ी बेसिक लेवल का मतलब एक यू कैन से इंटरव्यू तो हम उसे नहीं कहेंगे, वो एक मतलब क्या है कि नो हाउ होती है जस्ट ये चेक करने के लिए कि कितना विलिंग है क्या नहीं है, तो उस बेस पे फिर इंटर्नशिप होती है। कौन से ईयर के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं? कौन से ईयर के स्टूडेंट्स को, अगेन मुश्किल सवाल यार एक सेकंड सोचने दो। इसका इंटर्नशिप आंसर होगा थर्ड ईयर के बाद वाले जो हैं। देख 7th और 8th वाले को तो इंटर्नशिप नहीं देती, ये तो मुझे पता है। तो हाँ, क्योंकि वो तो देते एफवाईपी हैं पे काम कर रहे हैं अपना, वो जो उस देते चीज़ में हैं नहीं है। 3rd 4th और 5th, 3rd 4th फोर्थ 5th फिफ्थ के 6th बीच में आपकी एक ब्रेक है सेकंड और थर्ड, सिक्स सेवन्थ में एक ब्रेक है, तो हाँ सेकंड सेकंड ईयर या थर्ड, थर्ड ईयर वाला जो है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर। ये आपके भाई इसका आप आंसर करेंगे, हाँ पूछो। यानी कि फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में जो है वो ब्रेक में है, एक तरह से समर ब्रेक है। तो वो समर ब्रेक में स्टूडेंट हो सकता है या फिफ्थ सिक्स के बीच, सिक्स सेवन्थ के बीच में जो समर ब्रेक आ रही है आपकी वो उसमें। क्योंकि इंटर्नशिप हमारी कंपनी ये कोशिश करती है कि 2 महीने या 3 जो आ रहे हैं आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करें उस चीज़ में कि जो प्रोजेक्ट्स चल रही हैं या लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हो क्या रहा है, और आपके जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है जो आप यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हो, कोड लिखा फेंक दिया, वो हिसाब होता है उसमें, और एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क आता है, कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश की जाती है उस इंटर्नशिप पे। इन शॉर्ट सेकंड और थर्ड ईयर के बाद जो जी, ब्रेक यानी कि आती जो है आपके समर ब्रेक उसमें हैं उसको प्रेफर किया जाता You है can avail this opportunity like this is for the second and third year थर्ड ईयर students. स्टूडेंट्स। उसके अलावा आपके ख्याल से जीपीए कितना मैटर करता है? GPA, well पर्सनली पूछ रहे हो या लाइक
जो मतलब दोनों पर्सपेक्टिव से, पर्सनली भी या कंपनी के पर्सपेक्टिव से? अच्छा यार, बेसिकली ऐसा है कि अगर मैं आरबी सॉफ्ट के फ्रेश ग्रेजुएट प्रोग्राम की ही बात करूं तो जीपीए मेरे ख्याल तक अगर आपके कोर्सेज क्लियर है ना, कोर्सेज सारे क्लियर हैं, तो जीपीए मैटर नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि आरबी सॉफ्ट अपना टेस्ट ले रहा है, ठीक है। वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक एमसीक्यू बेस एंड देन, ठीक है। तो अगर आप हमारे टेस्ट और प्रोसेस को क्लियर करते हो तो उसके बाद नो मैटर आपका जीपीए जितना भी है, बस ये है कि कोर्सेज सारे क्लियर होने चाहिए। तो आपको कोई कट ऑफ जीपीए नहीं होता अप्लाई करने के लिए, नहीं, ऐसा वो कुछ? चीज़ नहीं है। अगर एक स्टूडेंट है जिसका जो है ना मतलब जीपीए कह लें वो 2.6 है, लेकिन उसने आउट ऑफ द वे जाके हमारे टेस्ट में परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली हम उसको प्रायोरिटी देंगे। बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हों किसी ने, तो उस पर कितना फोकस होता है? प्रोजेक्ट्स पे जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसमें प्रोजेक्ट्स का ठीक है, वो एक उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल उससे पूछो तो आई गेस वो उस पे मतलब इतना मतलब जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है वो सारों को एक ही स्टेज पे रखा जाता है कि ये फ्रेश है, ठीक है। मतलब उसके अलावा अगर उसने कोई इंटर्नशिप्स की हैं या फ्रीलांसिंग कर रहा है, फ्रीलांसिंग को तो वैसे ही मेरे ख्याल तक काफ़ी सारी जो इंडस्ट्री है ना वो उसको वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं करती। सो मेन फोकस आपका ऐसे ही आता है। अपने टेस्ट पे ही हाँ, होता है? वो ये आप कह लो कि इंटरव्यू क्लियर करने में वो आपको हेल्प कर देंगे। वो क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने जब काम किया हुआ है तो आपको नो हो बेहतर होगी एक दूसरे बंदे से जिसने नहीं वो या प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए या फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा, तो वो एक एडवांटेज बन सकता है। पर अगर उस चीज़ को आप ये कहो कि कंसिडर किया जाएगा प्लस पॉइंट के तौर पे इंटरव्यू की स्कोरिंग में, तो वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हम स्क्रीनिंग खुद से कर रहे हैं कि जीपीए भी इसीलिए मैटर नहीं कर रहा कि एमसीक्यूज़ का टेस्ट आप क्लियर कर रहे हो तो आप ये टेक्निकल स्किल्स शो कर रहे हो कि आप प्रोग्राम कर सकते हो, तो फिर वो प्रोग्रामिंग टेस्ट भी एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली एवेलुएट करता है आपकी स्किल्स को कि आपके वो के स्किल्स कैसे हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी आती है इन चीज़ों पे। तो उनकी जो स्कोरिंग है वो आपको डिटरमिन करती है कि आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ जो थर्ड फेज़ है उसमें इन होते हो कि नहीं। जीपीए ऐसे वो नहीं देखा जाता, जीपीए और प्रोजेक्ट्स फर्क नहीं पड़ता, मेन स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स होने चाहिए और टेस्ट जो हमारा है वो बस प्रोसेस क्लियर करना है। टेस्ट एक तरह से आपके स्किल्स को शोकेस कर देता है और फिर इंटरव्यू में आप अपनी नॉलेज को शोकेस करते हो, तो वहाँ पे आपको ये इस चीज़ का एडवांटेज बन जाता है कि आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आप इंटर्नशिप करते रहे थे आपने या फ्रीलांसिंग की हुई है, तो ये आपको एक टेक्निकल नॉलेज एक्सप्लेन करते हुए जो है ना एक प्लस पॉइंट दे देता है। क्योंकि अगेन मैं वही बात करूँगा कि जब आप यूनिवर्सिटी में कोडिंग कर रहे हो तो तब आपका कोड मोस्टली इसी तरह लिखा जा रहा है कि आज लिखना है कल चेक होगा परसों फेंक देना है। जबकि इंडस्ट्री जो चाहती है वो आपके कोड ऐसा होना चाहिए कि कोई तीसरा अगर बंदा आके उठाए उस कोड को तो वो समझ सके। तो वो चीज़ें इस तरह से जो आपने एक्सपीरियंस गेन किए हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं। जब आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो आप अपना प्रिसाइज और टू द पॉइंट आंसर्स दोगे, वो चीज़ है। आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसा था? आप लोगों ने आरबी सॉफ्ट ज्वाइन क्यों की, किस वजह से की? अच्छा, ज्वाइनिंग प्रोसेस का पूछ रहे हैं या आरबी सॉफ्ट ज्वाइन क्यों की? क्यों की? क्योंकि प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर लिया हाँ है कुछ। हाँ, तो आरबी सॉफ्ट ज्वाइन क्यों की? यार मैंने आरबी सॉफ्ट ज्वाइन इसलिए की बेसिकली मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, ठीक है, जो आरबी सॉफ्ट में मतलब काम वगैरह करते थे, तो मैं ऑलरेडी एक और कंपनी थी उधर मैं काम कर रहा था। लेकिन डेफिनेटली जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उठता बैठता था तो मैं जो उनसे मतलब बातें सुनता था आरबी सॉफ्ट के कल्चर, इन्वायरमेंट, और जैसे मैंने उनको मतलब विद इन 5-6 मंथ्स उनको मैंने देखा कि उनका जो ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग के अलावा जो उनके स्किल सेट में जो इम्प्रूवमेंट वगैरह थी, तो डेफिनेटली हर बंदा जब इस तरह देखता है अपने सराउंडिंग में, ठीक है, तो वो चाहता है कि वो एक अच्छी जगह पे अप्रोच करे। तो फिर उनके साथ साथ मेरा भी ये एम था कि आरबी सॉफ्ट को ज्वाइन करना है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू दिया और लकीली हो भी गए। आपको क्या लगता है आरबी सॉफ्ट बाकी दूसरी कंपनियों से कुछ डिफरेंट करता है तो क्या करता है? आरबी सॉफ्ट दूसरी कंपनियों से अगर कुछ डिफरेंट करता है तो वो ये करता है कि आरबी सॉफ्ट अपने एम्प्लॉयज़ को ना वैल्यू करता है, ठीक है। दूसरा, आरबी सॉफ्ट के इंटरनल जो टीम कल्चर है, मतलब जिस तरह मैं अब जिस टीम में काम करता हूँ, ठीक है,
वो मतलब मुझे बहुत मतलब डेफिनेटली हो सकता है किसी और इंडस्ट्रीज़ में भी हो, लेकिन आरबी सॉफ्ट इसको स्ट्रिक्टली एज़ पर पॉलिसी फॉलो करता है, ठीक है। तो हमारी मतलब जो टीम है, एक तो ये है कि मतलब सारे एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। लेग पुलिंग मैंने अभी तक अपनी टीम में नहीं देखी, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज़ है, मतलब जो जितना सीनियर है ना वो आपको उतना सपोर्ट करता है, ठीक है, कि भाई आप आओ आगे, हम सपोर्ट करेंगे ये वो। अब ये चीज़ आपको ना एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, और आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो आरबी सॉफ्ट के अंदर ना मतलब मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे आपने बताया सीईओ भी आपके साथ बैठ के खाना खा रहे होते एग्जैक्टली वो साथ बैठ के खाना खाते हैं जब भी। हैं, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती होगी टीम में, टीम वर्क भी बेहतर होता होगा इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब उसके अलावा मतलब यही मैं बात करूँ, सीईओ तो चले मतलब एक है कि वो हमारे साथ बैठ के खाना, मतलब टीम के अंदर भी ना मतलब अगर टीम लीड है वो, अब कुछ ऐसी मतलब होते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब जो टीम लीड है वो कहते हैं कि ओके यार मैं मतलब टीम लीड हूँ तो ही इज़ लाइक अ बॉस। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे टीम लीड अगर मैं आपको कहूँ ना, तो हम जितना रगड़ा खाते हैं ना उससे ज़्यादा वो रगड़ा खाते हैं, ठीक है। रगड़ा इन अ सेंस कि मतलब सम टाइम्स अगर कोई ऐसा काम फंस गया ये वो, तो ऐसे ही नहीं है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये आपका काम फंसा आप देखो, नहीं, वो मेरे साथ होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब सारी चीज़ें, तो वो एक ना बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के ऊपर सारा लोड डाला जा रहा है अब। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन पे ज़्यादा लोड है। जैसे भी मेरा 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो मेरे पे आतिफ से डेफिनेटली कम लोड होगा, इसका मेरे से एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा लोड होगा। आरबी सॉफ्ट में उल्टा है। वैसे टाइम के साथ साथ आप सीखते भी रहते हैं, आपकी लर्निंग भी होती रहती है। यार लर्निंग का आई गेस मतलब टीम टू टीम डिफरेंट भी होता है, लेकिन जो हमारी टीम है उसमें बिल्कुल हम टाइम टू टाइम साथ साथ चीज़ें सीख रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो मतलब स्टार्ट किया पाइथन से जेंगो, उसके बाद डेफिनेटली साथ साथ मतलब क्लाइंट से भी डिस्कशन होती है, ख़ुद भी उसको आइडिया देते हैं कि यार अब हमें मतलब ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तो साथ साथ हम सीख रहे होते हैं। दूसरा आरबी सॉफ्ट में एक अच्छी चीज़ ये है कि सम टाइम्स अगर आपको लग रहा है कि अब आप इस प्रोजेक्ट में मतलब स्लो डाउन हो रहे हो, आपकी और लर्निंग नहीं हो रही, तो आरबी सॉफ्ट आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप अपना मतलब प्रोजेक्ट स्विच कर सकते हैं। या इवन अगर आपको लगता है कि आपने वेब पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब आपने एआई या डाटा साइंस की तरफ जाना है, तो आप उसके लिए भी हमारा एक प्रॉपर मतलब एक चैनल है, उसके थ्रू आप अपना स्विच डाल सकते हैं और आपको आरबी सॉफ्ट के अंदर ही जो दूसरी टीम्स है उसमें स्विच कर दिया जाएगा। बाकी मेरे ख्याल तक आतिफ अपना बता सकते हैं कि इनका कैसे वो है। मैं हायर हुआ था ये फ्रेश ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू, जी। तो वो तो एक्सपीरियंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या प्रोसीजर है। तो ये इसमें ये एडवांटेज हो जाता है कि बिफोर यू आर गिविंग योर फाइनल एग्ज़ाम्स आपके हाथ में एक जॉब होती है, आपने ज्वाइनिंग डेट आपको पता होती है कि मैंने कब से जॉब पे जाना है। तो वो एक था, यू कैन से कि एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन द कंपनी बहुत अच्छा है कि काफ़ी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है और टीम बेस्ड काम होता है मोस्टली। तो अब मैं जिस टीम में हूँ उसमें मेरे ऊपर सिर्फ एक मेरा टीम लीड है, उसके अलावा मुझे किसी को भी आंसर नहीं करना। तो एक जो वो हायरार्किकल वो आपके ऊपर फोर्स नहीं है ना, तो वो भी एक काफ़ी आपको फ्री रहने के फ्री रखती है। माइंड स्ट्रेस नहीं बनते इस तरह के उसको भी रिपोर्ट करना उसको भी रिपोर्ट करना, वो चीज़ें नहीं हैं। तो इसकी वजह से टीम में जो कल्चर है वो काफ़ी वो एक नॉन टॉक्सिक सा होता है। वो क्या कहते हैं उसको, जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो बहुत ही मिनिमल हो जाती है। काफ़ी चिल माहौल है। चिल माहौल हो गया क्योंकि आपने एक बंदे को रिपोर्ट करना है, हाँ। उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग सही बनी हुई है कि काम हो जाएगा जब चाहिए, तो फिर आपको ना वो डिस्टर्ब कर रहा है ना आपको इशू हो रहा है, आप अपने पेस पे काम कर रहे हो, काम वक्त पे हो रहा है, एवरीवन इज़ हैप्पी। वो सिचुएशंस है मोस्टली टीम्स में, यही सुना है। ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होने का ये एक एडवांटेज है। बाकी डेवलपमेंट ग्रोथ, अब मैं हूँ सर्विसेज वाली साइड की टीम में, तो इसमें फिर वो अपॉर्चुनिटी कम है क्योंकि सर्विसेज आपने एक प्रोडक्ट बनी हुई है उसको मेंटेन करने है, उसको अप टू डेट रखना है, तो उसमें चेंजेस इंडस्ट्री में आएंगे तो आपके पास चेंजेस आते हैं इम्प्लीमेंट करने के, लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ वो बनते हैं। उसके अलावा फिर आरबी सॉफ्ट इस चीज़ को फैसिलिटेट इस तरह से कर रहे हैं कि एक तो इन हाउस ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट है। आरबी सॉफ्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कंट्रीब्यूशंस उन्हें चाहिए होती हैं,
तो उन्होंने उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। आप वो टास्क सेलेक्ट करो, जो भी उस प्रोजेक्ट का लीड होगा उससे आपकी कोऑर्डिनेशन हो जाती है कि आप वो टास्क कर रहे हो तो वो आपको असाइन कर देते हैं टिकट। अब आप उस पर वो आप ओपन सोर्स काम कर रहे हो, एक तरह से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के लिए, और वो उसमें कंट्रीब्यूशन आपकी काउंट हो जाती है। ये आपके फिर आप कह सकते हो कि इंक्रीमेंट्स वगैरह में भी आपको हेल्प कर देता है, क्योंकि आपकी सर्विसेज के उसमें प्रोजेक्ट में वो लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। और बाकी तो इन्होंने पहले ही आपको बता दिया कि जो आप स्विचिंग का, वो बहुत इजी एक सिचुएशन है कि आप अपनी रिक्वेस्ट पॉड को डाल पीओडी को करें, वो आपको जैसी अपॉर्चुनिटी या आती है किसी प्रोजेक्ट में तो वो आपको स्विचिंग की ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैकएंड डेवलपर हूँ हम्म, एट आर्बीसॉफ्ट, हाँ। तो क्या वो इनकरेज करेंगे मुझे कि मैं एआई और ब्लॉकचेन भी एक्सप्लोर करूँ, या फिर वो चाहेंगे कि मैं वो बैकएंड को ही, वो जिधर मैं हूँ उधर ही उसी फील्ड में मैं फोकस रखूँ और उधर ही बेहतर करूँ? ये आपके पर्सनल चॉइसेस पे है। अब मेरा वो इनकरेज नहीं करते कोई वो इनकरेज इस तरह से है कि मोड? आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, हाँ। और ये वो अक्रॉस द बोर्ड अनाउंस करते रहते हैं ताकि सबको पता रहे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अब ऐसा भी केस है कि मेरा फ्रेंड है, वो एज अ कोर्स ऑथर हायर हुआ था, विच इज़ इन द टेक्निकल वर्क। कोर्स ऑथर या वो ईमेल्स की रिप्लाईज करने का काम था सर्विसेज का, और उसके बाद उसने क्यूए की ट्रेनिंग ली कंपनी में इन हाउस, और उसके बाद वो एक क्यूए के प्रोजेक्ट पर मूव हो गया। 2-3 क्यूए के प्रोजेक्ट्स पे उसने टीम्स उसकी मूव होती रही, वो काम करता रहा। अब वो एक प्रॉपर एसक्यूए इंजीनियर बन चुका है। उसकी टेक्निकल स्किल्स नहीं थी, पर कंपनी ने उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि वो एक नॉन टेक्निकल अकाउंटिंग की डिग्री का होल्डर है। उसने अपने आप को लर्निंग के थ्रू प्रोग्रेस की है, वो इस चीज़ पे आ गया। इसी तरह कंपनी अलाउ करती है, आप बैकएंड से फ्रंट एंड जाना चाहें, फुल स्टैक बनना चाहें, आप ब्लॉकचेन पे काम करना चाहें, एआई पे काम करना चाहें, अपॉर्चुनिटी सारी अवेलेबल है। आपने अपना पीपल पार्टनर से कांटेक्ट करें, आपको उसमें फैसिलिटेट करेगी, आप मूव कर सकते हैं। अच्छी बात। अच्छा, इसमें ऐड ऑन ये है कि इसके अलावा आरबी सॉफ्ट आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे इफ़ समवन वांट टू लर्न समथिंग ना, तो वो क्या कर सकता है कि वो कहीं से भी कोर्सेरा, यूडेमी, कहीं से भी सर्टिफिकेशन कर ले, एंड देन आरबी सॉफ्ट उसको रीइंबर्स करती है ऑन कंप्लीशन। ठीक है। उसके अलावा हमारा मतलब वहाँ पे काफ़ी मतलब एक कॉम्पिटेंसी फॉर्म है ये वो, तो उसके थ्रू भी वो आपको यही इनकरेज कर रहे होते हैं कि आप जो है ना मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस भी करें। आप ने जो है ना मतलब अदर देन डैट के जो आपका प्रोजेक्ट में काम हो रहा है उसके अलावा भी आप जो है मतलब अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें। मतलब कि अगर आपको पाइथन आती है तो आप कोई और सर्टिफिकेशन करें। ठीक है, जैसे मतलब अगर मैं बैक एंड का बंदा हूँ तो कोई डॉकर की कोई सर्टिफिकेशन कर ली या इस तरह, तो वो भी हाँ। आपको इनकरेज करते हैं। उसमें भी वो एड करते हैं आपको। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपकी स्किल सेट आपको लगेगी कि आप इस लेवल पे हो कि आप दूसरों को टीच कर सकते हो, तो ये भी आपको इनकरेज करते हैं उस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के थ्रू कि आप कंपनी वाइड ट्रेनिंग्स दें, मेंटोरिंग आप मेंटोरिंग करें, कंपनी वाइड ट्रेनिंग्स दें ओपन। तो वो भी आपके उसमें कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क इंक्रीमेंट्स के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। तो इस तरह से वो एक इंसेंटिव, वो जो है ना फाइनेंशियल इंसेंटिव बनाया हुआ है इस चीज़ में कि आप खुद की भी लर्निंग करें, दूसरों को भी टीच करें, और अगर आपको लगता है कि आप इस लेवल पे हैं तो आप कंपनी वाइड एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि और लोग भी फ़ायदा ले सकें उस ताकि चीज़ का। सबकी ग्रोथ हो। जी। ये तो काम की बातें हो गई। इसके अलावा नॉन वर्क एक्टिविटीज़ कुछ होती हैं आर्बीसॉफ्ट में? नॉन वर्क एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अगर आप आरबी सॉफ्ट का कोई ऑफिशियल पेज वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो चल रही होती हैं। जैसे भी पिछले दिनों जो है ना मतलब रमज़ान से पहले उन्होंने एक न्यूट्रिशनिस्ट बुलाई हुई थी। ठीक है, जो कि डेफिनेटली जिनको जो है ना मतलब कह लें कि वेट गेन करना था उनको उस हिसाब से गाइड कर, जिनको वेट लॉस करना था उनको उस हिसाब से बता रही थी। इसके अलावा हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं इन हाउस, मतलब उसके अंदर आप कह लें लूडो का टूर्नामेंट होता है, उसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं। फिर आरबी सॉफ्ट जो है वो आपको, जैसे पहली बात हुई कि इंसेंटिव देता है कि आप ट्रिप पे जाएं, वो रीइंबर्स हो जाएगा।
उसके अलावा आरबी सॉफ्ट के अंदर भी हमारा मतलब एक स्पोर्ट्स रूम है जहाँ पे आप जाके डिफरेंट मतलब गेम्स वगैरह और ये चीज़ें कर सकते हैं। आप इंटरव्यू से पहले वो गाड़ियों का मेंशन कर रहे थे, आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है या आप मर्सिडीज मेंशन कर रहे थे? अच्छा, वो तो मैं किसी और सेंस में कर रहा था। अच्छा, गाड़ियों में यार इंटरेस्ट किसको नहीं होता यार, मतलब गाड़ियों में सबको ही इंटरेस्ट होता है। आरबी सॉफ्ट में किस तरह की गाड़ियाँ दिखती हैं आपको? आरबी सॉफ्ट में किस तरह की गाड़ियाँ दिखती हैं? आरबी सॉफ्ट के जब आप कार पार्किंग में जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारी नज़र आ रही होती हैं, आपको छोटी गाड़ी कोई नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मेरी ड्रीम कार है ऑडी A4। ऑडी A4। आपकी? मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाड़ियों में, बस चलती हो काफ़ी है। चलती बस, 4 दरवाजे हों, 4 टायर हाँ। हों। आप लोगों को जीके कैसे लगी? जी की यार अच्छी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, मतलब टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। अगर ये बात करो कि मतलब यहाँ पे आके ओवरऑल मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और ये सारा तो मतलब अच्छा है, लेकिन यह है कि हम जिन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो खामोश खामोश नहीं होती, यहाँ पे ऐसे लग रहा है बड़े शरीफ बच्चे हैं सारे। अभी काफ़ी वेकेशंस पे भी चले गए हैं बच्चे इस वजह अच्छा से। अच्छा अच्छा, सही। इसलिए क्योंकि हम तो, मैं खुद कॉमसेट इस्लामाबाद से पढ़ा हूँ तो वहाँ पे तो ऐसी खामोशी, और फिर मतलब कि इस तरह अगर हो कि मतलब ऑफ वगैरह ना हो, बल्कि जब ऑफ भी हो तो वहाँ पे इतना सुकून नहीं नज़र आएगा कभी। हाँ। अभी रमज़ान भी है तो काफ़ी। हाँ ये हो सकता है, बैटरी लो है जी। सारों की। सही सही सही। बाकी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग? यार थैंक यू सो मच, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। खैर मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था पॉडकास्ट का, ठीक है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, और अच्छा लगा आपके साथ मतलब सारी डिस्कशन वगैरह करके। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपकी आरबी सॉफ्ट आएँ, फिर वहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह। Inshallah. With that, we would like to end this podcast. Thank you for watching.